Okay, dear students, today we are going to study a new topic. This is kinetics of copolymerization, in which we will be discussing the kinetics which governs copolymerization reactions and how which type of polymer is formed can be observed by looking at the reactivity ratios. So suppose we have a reaction, polymerization reaction, in which there are two monomers M1 and M2. So if we say that the reaction proceeds via free radical mechanism, in that particular case there will be an initiator which will react with the monomer. Suppose it reacts with monomer M1, then it will form the starting chain or M1, in which the monomer M1 will be there, or it will react with M2, then it will form or M2. So the propagation, this is the initiation step. Propagation is possible in various ways, 4 different ways actually. In first case, the growing chain which has a terminal group M1 can react with another monomer M1, and the chain in this case will be a homopolymer or M1. The rate constant for this is K11. The other chances that the RM2 will react with an M2, and again the polymer formed in this case will be a homopolymer, and the rate of the reaction, rate constant for the reaction will be K22. So suppose the or there is another possibility that the RM1 radical it reacts with an M2. So in this case there will be a copolymer formed. हमारे पास इसमें copolymerization हो रही है, and the rate constant of the reaction is K12. And suppose the RM2 radical it reacts with M1 and it forms this case also we have a copolymer RM2 M1 radical. So this is also a copolymer and the rate constant is K21. So we have 4 different scenarios. So suppose for the first step, the rate of the reaction R11, suppose we since the two reacting monomers are 1 and 1, we show the rate of the reaction is R11 is equal to K11, and the concentration of radical M1 and monomer M1. This is equation first. The rate of the reaction 2 is R12 reaction rate out of this particular equation is R12 is equal, R22 is equal to K22, because in this case we have radical M2 and monomer M2. And the third chance is that R12 is equal to K12 M1 M2, and the fourth is that the rate of the reaction R22 is equal to K22 M2 radical and M2. Hence we get 4 different rate of the reactions for 4 different type of propagation steps. Each propagation step has its own rate constant, and there is an important thing that you need to remember, and I have mentioned it here also, that the relative growth of the chain it only depends upon the end radical. जो हमारे लास्ट में रेडिकल है ना, जैसे इस केस में हमारे पास है M1, और बाकी चेन में क्या रेडिकल है उससे फर्क नहीं पड़ता. इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द एंड रेडिकल ऑफ द चेन. अब आप देखिए कि हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मोनोमर्स M1 एंड M2 हमारे पास कैसे है. देखिए जो इसको हम ऐसे इक्वेशन में दिखा सकते हैं, -dm1/dt इज इक्वल टू K11 M1 मोनो रेडिकल M1 प्लस K21 M2 radical M1. This is the rate of consumption of monomer M1. कि हमारे पास मोनोमर M1 जो है वो किस किस इक्वेशन में हो रहा है. देखिए मोनोमर M1 किस किस में यूज़ हो रहा है, इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, और हमारे पास यूज़ हो रहा है फोर्थ इक्वेशन में. 2 इक्वेशन में यूज़ हो रहा है, K11 में और K21 में, और वही दोनों हमने यहाँ मेंशन की कि जो कंजम्पशन ऑफ मोनोमर M1 है वो एक तो K11 में हो रहा है जिसमें जो हमारे रिएक्टिंग मोनोमर्स है वो कौन सा है M1, और दूसरा K21 में हो रहा है जिसमें हमारा रिएक्टिंग मोनोमर भी है अगेन M1. तो इसको हमने इक्वेशन 5 कर दिया. दूसरा है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मोनोमर M2. ये किस किस में यूज़ हो रहा है मोनोमर M2. एक तो मोनोमर M2 यूज़ हो रहा है हमारे पास K22 में और यूज़ हो रहा है K12 में. तो हम यही 2 इक्वेशंस यहाँ पर दिखा रहे हैं, K12 एंड K22, और साथ में हमने इनके क्या दिखाए हैं, इन पर्टिकुलर रिएक्शंस में हमारे पास कौन कौन सी जो कंसंट्रेशन स्पीशीज़ है. अब सपोज हम एज्यूम करते हैं स्टडी स्टेट, जहाँ पर क्या है कि हम एज्यूम करते हैं कि डेटा चेन and with monomer radicals M1 and M2 are disappearing at same ratio
देन वी कैन से दैट सपोज हम यहाँ एज्यूम करते हैं एक स्टेडी स्टेट और हम कहते हैं कि जो m1 की रेट ऑफ डिसअपियरेंस है ना, इट इज़ equal to the rate of disappearance of m2, then we can write an equation like this, that k12 m1 monomer radical m2 is equal to k21 m2 radical m1, कि हमारे पास जिस रेट से m2 कंज्यूम हो रहा है उसी रेट से m1 भी कंज्यूम हो रहा है, और जिस रेट से m1 की रेडिकल चेन खत्म हो रही है उसी रेट से हमारे पास m2 की रेडिकल चेन भी खत्म हो रही है। इसका मतलब ये दोनों रेट इक्वेशंस हमारे पास क्या है, इक्वल, तो बोथ द रेट्स आर सेम। अब हमारे पास क्या है, इसमें हम रीअरेंज करेंगे, रिलेटिव चेंज इन मोनोमर कंपोजिशन कैन बी री रिटन हैज। अब हम इसको दोबारा लिखेंगे, जो हमारी इक्वेशन है अब हम क्या लिखेंगे, इसमें हमें दिखाना है रिलेटिव चेंज इन मोनोमर कंसंट्रेशन, ठीक है, कि हमारे पास रिलेटिव चेंज इन मोनोमर कंसंट्रेशन कैसे हो रही है, dm1 by dm2 इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर लिखेंगे, dm किसके बराबर है, k11 m1 रेडिकल m1 प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, k21 m2 रेडिकल m1 dm2 k22 m2 रेडिकल m2 प्लस k12 m1 रेडिकल m2। अब हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन हमने इक्वेशन नंबर 8 लिखी, इसमें हम वैल्यूज डालेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 हमें कहती है कि जो k12 है इट इज इक्वल टू k21 एंड k21 इज इक्वल टू k12। तो हम यहाँ पर इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, k11 m1 रेडिकल m1 प्लस k12 m2। अब यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास k21 था, यहाँ हमने क्या इक्वेशन में टर्म डाल दी, k12 m2 रेडिकल m1 और k22 m2 रेडिकल m2 प्लस k21 m2 रेडिकल m1, ठीक है, ये हमारे पास थोड़ी सी चेंज हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम ये इसको थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम जो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ फ्री रेडिकल m1 एंड m2 जो है, इसको हम कॉमन आउट ले लेंगे, या तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, dm1 dm2 इज इक्वल टू, हमने इन फैक्टर्स को कॉमन ले लिया, m1 रेडिकल और m2, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है k11 m1 प्लस k12 m2, k22 m2 प्लस k21 m1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 10। अब क्या हो जाएगा, ऑन रीअरेंजिंग इक्वेशन 7 इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फ्री रेडिकल m1 एंड m2, ठीक है, हम इक्वेशन 7 जो है ना हमारी, जो ये वाली है, इसको हम रीअरेंज करेंगे, वी विल रीअरेंज दिस इक्वेशन, और हम इसमें से m1 बाई m2 जो है उसको अलग निकालेंगे, तो हमें ये आ जाएगा, डैट मीन्स m1 बाई m2 इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर टर्म। तो हम इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब m1 और m2 की जगह क्या आ गया, m1 बाई m2 की जगह m1 बाई m2 की जगह आ गया k21 m1 बाई k12 m2, और ये टर्म जो है ये हमारी अलग से सेम ही रही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये न्यूमरेटर है इसको हम यहाँ ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है, और जो ये डिनोमिनेटर है इसको हम ले जाएंगे यहाँ पे न्यूमरेटर में, ठीक है। तो अब हमारी टर्म कुछ ऐसी बन जाएगी, dm1 बाई m2 इज इक्वल टू m1 बाई m2, क्योंकि इन दोनों टर्म्स को हम कहाँ ले गए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ क्या बन गया, k11 बाई k12, ये जो है डिनोमिनेटर में ये कहाँ आ गया, हमने इसको न्यूमरेटर में लिया m1 प्लस यहाँ भी k12 है, ये भी k12 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ सिर्फ रह जाएगा m2, और यहाँ से हमने k21 जो है उसको ले लिया डिनोमिनेटर में, k22 बाई 21 m2 प्लस यहाँ पर हमारे पास k21 ही है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा और रह जाएगा m1। अब हमारे पास क्या आ गई, ये इक्वेशन नंबर 12 जो कि ऐसी दिखती है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एक टर्म आ जाती है, जो ये k11 बाई k12 है ना, ये रेशियो है, रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट k11 टू द रेट कांस्टेंट k12, इसको हम डिनोट करते हैं एज R1। It is known as reactivity ratio, that the reactivity ratio of k11 by k12 is equal to R1 and the reactivity ratio of k22 by k21 is equal to R2। तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे, इनकी जगह पे टर्म्स डालेंगे R1 and R2। What do we get, dm1 by dm2 is equal to m1 by m2 r m1 plus m2 m2 r2 m2 प्लस m1, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 30। ये जो इक्वेशन है ना, ये हमारे पास आपके पास
जो आ गई, दिस इज आर कोपॉलीमर इक्वेशन। ये आपकी मेन जो है वो क्या है, ये कोपॉलीमर इक्वेशन है। तो विच टेल्स अस, जो मैंने यहाँ मेंशन किया, डेट विच दिस इक्वेशन टेल्स अस फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मोनोमर्स वेदर और पॉलीमर्स विल बी होमोपॉलीमर्स, रैंडम, ब्लॉक और अल्टरनेट कोपॉलीमर्स। Reactivity ratios depend on the nature of monomer.